السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في موضع آخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشین مائے بہنیں، کل تعریفیں اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و مربی پالنہار ہے۔ درود و سلام کی داعیہ نشاور ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائی و دوستو، آج اگر اپنے مسلم سماج کے اندر دیکھا جائے، آج اگر اپنے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا جائے، بے شمار کوتاہیاں ہیں، بے شمار کمیاں ہیں۔ انہی کمیوں کی ایک کڑی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم تمام سے بیٹھک کو حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے کی جائے ان باتوں پر تمام حق و عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں دوستو، میرے آپ کے اپنے معاشرے میں، میرے آپ کے اپنے سماج میں، میرے آپ کے اپنے گھر میں، میرے آپ کے اپنی سوسائٹی میں بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ جہاں نماز کی کمی ہے، روزوں کی کمی ہے، حج و عمرہ زکات کی کمی ہے، وہیں میرے آپ کے اپنے معاشرے میں بے شمار کوتاہیاں ہیں، بے شمار کمیاں ہیں۔ انہی کمیوں کے قریب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر تمام عمل کرنے والا بنا۔ میرے بھائیوں دوستو، میرے آپ کے اپنے پاس اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، اچھے مکانات ہیں، چلنے کے لیے سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، اچھے سے اچھا لباس زیب تک کیے ہوئے ہیں،
ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اللہ کا شکر ہے ہر وہ چیز میرے آپ کے اپنے پاس موجود ہے۔ اگر میرے آپ کے اپنے پاس، اگر میرے آپ کے اپنے گھر میں، اگر میرے آپ کے اپنے آنگن میں، اگر میرے آپ کے اپنے سماج میں، اگر میرے آپ کے اپنے سوسائٹی میں کچھ نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاقی گراوٹ آج سبوں کے یہاں پائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم اللہ۔ دیکھا جائے جوانوں کے ہاں، چھوٹوں کے ہاں، بڑوں کے ہاں، ہم علماء کے ہاں، سبوں کے ہاں کہیں نہ کہیں اخلاقی گراوٹ پائی جا رہی ہے۔ ہاں، اخلاقی گراوٹ۔ آج لوگ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ ان سے اچھی تو وہ ہے۔ ہماری دکانوں پر کوئی آنا نہیں چاہتا، ہم سے کوئی اچھی بات پوچھنا نہیں چاہتا، ہمیں کوئی اپنے مشوروں میں بلانا نہیں چاہتا۔ اللہ والوں کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم سے لوگ دوریاں بنا رہے ہیں، قریب نہیں آنا چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ وجہ یہ ہے اللہ والوں کہ میرے آپ کی زبان میں وہ زہر پیدا ہو گئے ہیں، وہ زہر پیدا ہو گئے ہیں کہ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو سامنے والے کے دل کو چھلنی کر جاتے ہیں، بلکہ زبان کو زہر میں ڈبو کر کے ہم زبان کو ادا کرتے ہیں اور سامنے والے کے دل کو چھلنی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں وہ میٹھی زبان نہ رہی، وہ اخلاق نہ رہا جس اخلاق کے تعلیمات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دیے تھے، وہ اخلاق نہ رہا، وہ میٹھی زبان نہ رہی، بلکہ آج کل تو صبح ہوتی ہے لوگ پوری طرح سے بھرے رہتے ہیں، پوری پلاننگ کر کے سوتے ہیں، رات دن کے اجالوں میں پلاننگ کرتے کراتے تھک گئے، رات میں جب گھروں میں سونے جاتے ہیں پلاننگ کر کے سوتے ہیں۔ صبح ہوگی پھر تیرے ساتھ یہ چال چلوں گا، صبح ہوگی پھر تیرا کام ایسے کروں گا، ایسے تمام چیزوں کو ہم اپنے سینے کے اندر دفن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں دفن ہی نہیں بلکہ انہی چیزوں کو لیے ہم رات میں سو بھی جاتے ہیں۔ اللہ والوں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنیاں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے سینے کے اندر دفن کیے ہوئے رات میں سو بھی جاتے ہیں۔ اللہ والوں غور کیجئے، اگر انہی چیزوں کے ساتھ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنیاں، ان تمام چیزوں کو لیے ہم دنیا سے پوچھ کر گئے، رب العالمین کے ہاں پہنچ گئے، تو بتاؤ رب العالمین کو ہم اپنا چہرہ دکھا پائیں گے؟ پروردگارہ نے پوچھ لیا میرے بندے کیا لے کر کے آیا ہو دنیا سے، تو انہیں دکھا دیں گے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنیاں۔ گاؤں میں اتنے سارے اختلافات ہیں، گاؤں میں اتنے سارے فسادات ہیں، بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتا، گاؤں والوں کے ساتھ نہیں بنتا، گاؤں میں اتنے سارے اختلافات ہیں، گاؤں میں اتنے سارے فسادات ہیں، یہی تمام چیزیں ہم رب العالمین کو دکھائیں گے نا۔ اللہ والوں اگر میری آپ کی زبان میٹھی ہو جائے، اگر میرے آپ کے اپنے اخلاق اچھے ہو جائیں، اللہ کی قسم جو دشمن ہیں وہ بھی دوست ہو جائیں گے، جو پتھر دل ہیں وہ بھی موم ہو جائیں گے، جو غیر ہیں وہ بھی اپنے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اگر میری آپ کی زبان میٹھی ہو جائے، میرا آپ کا اپنا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اسی لیے ایک سائل آیا، سوال کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا ہے اماں آپ بتائیں گے میرے رسول کے اخلاق کیسے تھے، میرے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں جواب میں، کیا تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تو رب کے قرآن کو نہیں پڑھتا؟ جا محمد رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں اگر جاننا ہو تو جا رب کے قرآن کی تلاوت کر لے، پیارے رسول کے اخلاق کی گواہی میں کیا دوں؟ رب کا قرآن پیارے رسول کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے، پارہ 29 سورہ قلم کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبی جسے اللہ رب العالمین نے مقام کو دیے ہیں، اللہ والوں قرآن کہتا ہے وہ نبی بڑے اخلاق پر فائز کیے گئے ہیں، وہ نبی بڑے اخلاق کے مالک ہیں، جس نبی کا امتی ہونے کا ہمیں آپ کو شرف ملا ہے، جس پیغمبر کو اپنا امام ماننے کا ہمیں آپ کو شرف ملا ہے۔ اللہ والوں اس پیغمبر کے اپنے اخلاق کیسے تھے، اس پیغمبر کے اپنے اخلاق کیسے تھے؟ ہم اسی پیغمبر کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم اسی پیغمبر کو اپنا ابو مانتے ہیں، ہم اسی پیغمبر کو اپنا حضرت مانتے ہیں۔ اللہ والوں اس پیغمبر کے اپنے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ والوں آؤ ہم آن کو بتائیں،
आपसे अगर पूछे आपके अपने पति के साथ बातचीत नहीं है, आपके अपने सगे भाई के साथ बातचीत नहीं है, कहाँ कितने दिन गुजर गए, कहाँ दुनिया साल पूछ ले, सालों गुजर गया है, सगे भाई के साथ बातचीत नहीं है। कहा कौन है? वही है जिसे एक अम्मा ने जन्म दिए थे, एक अब्बा ने परवरिश किए थे, एक छत के नीचे जवान हुए थे, सालों गुजर गया है, सगे भाई के साथ बातचीत नहीं है। सालों गुजर गया है, सगे भाई के साथ बातचीत नहीं है। कौन है? वही है जिसे एक अम्मा ने जन्म दिए थे, एक अब्बा ने परवरिश किए थे, एक छत के नीचे जवान दिए थे, सालों गुजर गया है, सगे भाई के साथ बातचीत नहीं। कहा यही नहीं बल्कि मैंने उससे यहाँ तक कह दिया है, तेरे जनाजे में मैं नहीं आऊंगा, मेरे जनाजे में तू नहीं आना। हाँ, लोग कहते हैं ना, थोड़ी सी अनबन हो गई तो लोग गुस्से में आकर के कह देते हैं, तेरे जनाजे में मैं नहीं आऊंगा और मेरे जनाजे में तू नहीं आना। अल्लाह वालों, आप अखलाक की बात करते हो, चमाट मारने वाला वही है, गालियां देने वाला वही है, बुरा भला कहने वाला वही है। अल्लाह वालों, इन तमाम बातों को एक तरफ रखो, अपने अमान की बात को एक तरफ रखो। कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्का पर फतह कर लिया गया है, मक्का में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्यारे रसूल मक्के में दाखिल हुए हैं, सर पर काली पगड़ी बधी हुई है, आपकी निगाहें झुकी हुई है, आपका सर झुका हुआ है, चारों तरफ से आवाज आ रही है, आज इंतकाम लिया जाएगा, आज बदला लिया जाएगा, आज को गिन करके मारा जाएगा, आज उनके साथ भी सलूक किया जाएगा जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बुरा सलूक किया था। अल्लाह वालों, पैगंबर की बेटियों को विधवा करने वाले भी मौजूद हैं, पैगंबर के सर पर ओढ़नी पहनने वाले भी मौजूद हैं, पैगंबर को गालियां देने वाले भी मौजूद हैं, पैगंबर को अपने ही जन्मस्थल से, अपने ही गांव से, अपने ही शहर से, अपने ही बस्ती से भगाने वाले भी मौजूद हैं। सारे के सारे जालिम मौजूद हैं। सहाबा की तरफ से आवाज आ रही है, आज इंतकाम लिया जाएगा, आज बदला लिया जाएगा, आज उनके साथ सलूक किया जाएगा जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बुरा सलूक किया। कमली वाले के कान में आवाज आ गई, खड़े हो गए, कहा मेरे सहाबा, नहीं नहीं, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, बदला नहीं लिया जाएगा, किसी को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, जाओ सबों के माफी का ऐलान किया जाना। उनको भी माफ किया जिन्होंने बिलाल को गलियों में घसीटा था, उनको भी माफ किया जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर ओछड़ी फेंका था, उनको भी माफ किया जिन्होंने खब्बाब के साथ जुल्म किया था। जाओ सबों को मैंने माफ कर दिया। और माफ करने के साथ साथ कयामत के सुबह तक आने वाली तमाम उम्मतों को ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर अपना आखिरी रसूल मानते हो, मैं मोहम्मद को अगर अपना आखिरी नबी मानते हो, तो जाओ, ये मोहम्मद का अपना खुद का अमल है, खुद को भी इस पर अमल करना होगा, अपनों को भी माफ करना होगा, गैरों को भी माफ करना होगा। मेरे भाई और दोस्तों, कम जुल्म ढाए थे, मक्का वाले कम परेशान किए थे, आज जुल्म खाने वाला कौन है? सगा भाई है। किसी से अनबन होती है कौन है? अपना पड़ोसी है, अपना गांव वाला है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल जब मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे, आपकी नजर जब खाने काबा पर पड़ी, आपकी आंखें अश्कबार हो गई। आपने खाने काबा को देख करके कहा है, खाने काबा, तुझे छोड़कर मैं मोहम्मद हरगिज़ ना जाता, लेकिन क्या करूं, तेरे शहर वाले मैं मोहम्मद को रहने नहीं देते। ऐसे लोगों को भी फतह मक्का के मौके पर माफी का ऐलान कर दिया, और माफ करने के साथ साथ क़यामत के सुबह तक आने वाली तमाम उम्मतों को यह पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर अपना आखिरी रसूल मानते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर अपना आखिरी नबी मानते हो, तो जाओ, ये मोहम्मद का अपना खुद का अमल है, अपनों को भी माफ करना होगा, गैरों को भी माफ करना होगा।
इसलिए शायर कहता है, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा हो तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के रसूल ने किसी जालिम को कभी बुरा भला नहीं कहा। मेरे भाई और दोस्त, ये अखलाक है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक और हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो सही बुखारी की हदीस है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अखलाक कैसे थे? हाँ, कैसे थे? एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक सहाबी रसूल हैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं और एक मुअद्दिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मामले को लेकर के, एक मसले को लेकर के जरा सी अनबन हो गई, एक मशवरा हो रहा था। उस मशवरे के अंदर हजरत बिलाल मौजूद थे, तो हजरत बिलाल ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को जुमला कह दिया। और अबू ज़र ग़िफ़ारी अरब खानदान के, अरब कबीले के बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को हजरत बिलाल की बात पसंद नहीं आई। ऐसा होता है जब कुछ लोग बैठे रहते हैं और वहां कोई ऐसा आदमी आकर के कुछ बोल पड़े और उस वक्त मेरे अपने मिजाज से मैच ना करते हो, तो ये इंसानी फितरत है कि कुछ बातें दिल में आ जाती हैं। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हजरत बिलाल को जुमला कह दिया। कहा, ये काली औरत के बेटे बिलाल को काले कनूटे, तू मेरी मजलिस में आकर के बोल दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात, ना तेरे खानदान का पता है, ना तेरे बाप का पता है, ना तेरे गांव का पता है, काला कलूटा काली मां का बेटा, तू मेरी मजलिस में आकर के बोल दिया। इतनी बार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हजरत बिलाल को कही। अब ये बात हजरत बिलाल के दिल में लग गई। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। दरबार रिसालत में बिलाल की हाजिरी होती है, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सलाम के बाद अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने अबू ज़र को गोरा बनाया है, बिलाल को अल्लाह ने काला बनाया है, हे अल्लाह के रसूल, इसमें बिलाल की गलती क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे भाई बिलाल, बात तो बताओ, क्या बात है? कहा, अल्लाह के रसूल, आज मुझे मेरे काला होने पर ताना मिला है, मुझे नहीं बल्कि मेरी माँ का नाम लेकर वो काली औरत के बेटे बिलाल वो काले करूटे, इतनी बात मेरे भाई अबू ज़र ने मुझे कहा है। अल्लाह के रसूल, मुझे तकलीफ हुई है, मुझे दुख हुआ है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, बिलाल को सीने से लगा लिया, कहा, बिलाल अबू ज़र को बुला लाओ। अबू ज़र की हाजिरी हुई, आए अबू ज़र। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू ज़र, क्या तुमने हजरत बिलाल को कोई ऐसा जुमला कहा है जिससे तुम्हारे भाई बिलाल को तकलीफ हुई है? कहा, अल्लाह के रसूल, कह दिया हूं, ऐसी बातें बोल दिया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू ज़र सुन ले, अगर तेरा भाई बिलाल तुझे माफ ना करे तो तेरा अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। सुन रहे जुमले कि अगर तेरा भाई बिलाल तुझे माफ ना करे तो तेरा अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। इतना सुनना था कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी मस्जिद से बाहर निकले। मस्जिद के दरवाजे पर कीचड़ मौजूद थे, जिसको हम और आप अपनी जबान में कनई बोलते हैं। उसी कनई को उठा उठा करके हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने जिस्म के ऊपर लिपोटने लगे, पोतने लगे। लोगों ने देखा, कहा, मेरे भाई अबू ज़र, क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कहा, सवाल ना करो। कहा, बात क्या है? कहा, मत पूछो। इतने में हजरत बिलाल निकले मस्जिद से बाहर। कहा, मेरे भाई अबू ज़र, क्या हो गया तुझे? अपने जिस्म के ऊपर कीचड़ को लिपोट क्यों रहे हो? कहा, मेरे भाई बिलाल, दूर से सवाल ना कर, आ जा, मेरे करीब आ जा और अपने जूतों से, अपने चप्पल से अबू ज़र की जबान रगड़ दे, ताकि फिर कभी अबू ज़र की जबान ऐसा जुमला ना निकाल सके जिससे तुम्हारे किसी भाई के दिल को तकलीफ हो जाए, ताकि फिर कभी अबू ज़र की ज़बान ऐसा जुमला ना अदा कर सके कि किसी भाई के दिल को तकलीफ हो जाए। आजा मेरे भाई, आजा, अपने जूतों से, अपनी चप्पल से अबू ज़र की ज़बान रगड़ दे। हजरत बिलाल
हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बाजू को पकड़ करके खड़ा किया और कहा मेरे भाई आ जा, तू मुझे सीने से लगा ले, मैं तुझे सीने से लगा लूं, तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अखलाक थे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के। ये अखलाक, आज ये अखलाक मेरे आपके अपने यहाँ नहीं रहा, बल्कि अगर कुछ मामला हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, तो हम साल हाँ साल 100 साल तक अपने दिल के अंदर जगह दे करके रखते हैं, बल्कि मौके की तलाश में लगे रहते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा इंतकाम लिया जाएगा, जैसे ही मौका मिलेगा बदला लिया जाएगा मेरे भाइयों दोस्तों। लेकिन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अगर कोई मामला हो जाता था, कुछ अनबन हो जाती थी, तो फौरी तौर पर जाकर के अपने मुआमलात को साफ सुथरा कर लिया करते थे। दोस्तों, आज मिजाज मेरे आपके अपने यहाँ नहीं रहा, बल्कि वो आयठन, वो रीजन जिसकी बिना पर इख्तलाफात हुए हैं, उसको हम साल हाँ साल 100 साल तक अपने दिल के अंदर जगह दे करके रखते हैं, मौके की तलाश में लगे रहते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा इंतकाम लिया जाएगा, जैसे ही मौका मिलेगा बदला लिया जाएगा। अल्लाह वालों, आइए वो हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन लयाल, कहा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक रखे, 3 दिन से ज्यादा वो अपने भाई से बातचीत ना करे। मेरे भाइयों दोस्तों, दुनियावी मामले में, दुनियावी मसले में अगर कोई अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत नहीं करता है तो ये हराम है, नाजायज है। लेकिन अगर मसला दुनियावी नहीं दीनी हो जाए तो आप दीन के मामले में बातचीत ना करना, दीन के मामले में नाराज होना, ये जायज है, दुरुस्त है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपका भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है, आपका भाई अल्लाह रसूल की बगावत कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तुझसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक वो अल्लाह के राह पर ना आ जाए, जब तक तू नमाज ना पढ़ने लगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दीन के मामले में बातचीत ना करना, दीन के मामले में इख्तलाफ, दीन के मामले में नाराजगी, ये जायज है। लेकिन अगर मसला दीनी में दुनियावी हो जाए और आप 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से बात नहीं करते हैं तो ये नाजायज है, हराम है मेरे भाइयों दोस्तों। इस मजलिस के अंदर हमें नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा हो जिससे मसला दीन के मामले में, जहां भी मामला है दुनियावी है, खेती बाड़ी है, जमीन जायदाद है, इस मसले में हम अपनों से दूर हैं, अपने भाई से दूर हैं, अपने पड़ोसी से दूर हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो जाओ अपने भाइयों के दरवाजे पर खड़े होकर के कह दो, आजा मेरे भाई, तू मुझे सीने से लगा ले, मैं तुझे सीने से लगा लूं, तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूं। इसलिए ये अकड़ना मुर्दों का काम है, झुकना जिंदों का काम है, अकड़ना शैतानों का काम है, झुकना इंसानों का काम है। फैसला मेरे आपके अपने हाथ में है, आया आप पकड़ना पसंद करते हो या झुकना पसंद करते हो। मेरे भाइयों दोस्तों, तो अगर आपसे कुछ अनबन आपके पड़ोसी से, आपके भाई से, आपके रिश्तेदार से हो गई है तो आप जाइए अपने भाइयों के दरवाजों पर, अपने रिश्तेदारों के दरवाजों पर, अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर खड़े होकर के कह दो कि आजा मेरे भाई, तू मुझे सीने से लगा ले, मैं तुझे सीने से लगा लूं, तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूं। इसलिए कि रूहों के लिबास का मसला बड़ा संगीन है मेरे भाई दोस्तों। बंदे का हक जब तक बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह भी माफ करने वाला नहीं मेरे भाई। तो अगर दुनिया के अंदर आपसे किसी से कुछ इख्तलाफ हो गया, अनबन हो गई, जमीन का मसला हो या और कोई मसला हो, आप इसी दुनिया के अंदर माफ करा लीजिए। अगर माफ नहीं कराएंगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नेकी में से आपको नेकी दिलाएगा, और उस मजलूम को नेकी दिलाएगा। अल्लाह वालों, मुसलमानों, गौर कीजिए, हम दुनिया को लेकर के कितने सेंसिटिव हुए हैं। क्या हम में से कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास आज शाम को अपने बच्चों के खाने का इंतजाम है और सुबह का इंतजाम नहीं है और वो बेफिक्र है? नहीं, उसको फिक्र लगी है कल क्या होगा, आज तो खा लिया मैंने, सुबह मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ये गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है, वो इस चिंता में जिंदगी गुजार रहा है। मेरा रब कहता है कुरान में, यही ईमान वालों, तुम आज की फिक्र कर रहे हो, कल की फिक्र कब करोगे? वो कल जो आने वाला है और कभी भी आ सकता है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, और हर आदमी ये सोचे या गौर करे उसने कल के लिए क्या तैयारी की है, उसने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। अल्लाह वालों, सूरतुल आला में आपने आयत जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को आखिरत के ऊपर तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी यह ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज दुनिया के अंदर जो हम परेशान हैं, तरह तरह की ठोकरें खा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के सामने जवाब देने का एहसास नहीं है दिलों में। आज पुलिस से नहीं डरता कोई आदमी, कानून से नहीं डरता कोई आदमी। क्यों? क्योंकि कानून से निपटने का तरीका भी उसे पता है, पुलिस से निपटने का तरीका भी उसे पता है। कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसा नजरिया होना चाहिए, कोई ऐसी सोच होनी चाहिए जो ये बताए कि ये पुलिस पकड़े चाहे ना पकड़े, ये कानून पकड़े चाहे ना पकड़े, लेकिन ये कानून ऐसा है, एक अदालत ऐसी है जहां हमें जवाब देना पड़ेगा, वहां हम बच नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और एयरपोर्ट के अंदर कैमरे लगे हैं। इंग्लिश में लिखा यू आर अंडर सर्विलांस, हिंदी में लिखा कैमरे की नजर में। अब जहां कैमरा लगा है वहां चोर भी चोरी करने से डरता है। क्यों? क्योंकि सामने कैमरा लगा है। हमने अगर कोई गलत काम किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया तो पकड़ा जाऊंगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये दुनिया के कैमरे हैं, लेकिन वो अल्लाह जो सारी जहान का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है, क्या वो अल्लाह ने मेरे आप की निगरानी के लिए कोई कैमरा नहीं लगाया? जरूर लगाया, और दलील भी दिया कुरान मजीद के अंदर, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, कि मेरे बंदो तुम दुनिया के अंदर जो कुछ करते हो, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, वो लिखने वाले किरामन कातिबीन, वो बुजुर्ग फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारे गलतियों को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी अच्छाइयों को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी बुराइयों को लिखने के लिए हमने 24 घंटे तुम्हारे ऊपर कैमरे लगा दिए हैं। तो फरिश्ते आपकी एक एक बात को लिख रहे हैं। कहां से बचोगे? क्या जवाब दोगे उस अल्लाह को, उस अल्लाह के मामला वालों? अरे हम जो करते हैं वो तो बात की बात है, हमारी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तेरी जबान से निकलने वाला ये एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है। अरे अल्लाह की शान तो यह है, उसके इल्म का हाल तो यह है, उसके कुदरत का हाल तो यह है कि वो आंखों की चोरी को भी जानता है, वमा तुख्फी सुदूर, वो तो दिलों के भेद को भी जानता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप मुझसे मुस्कुरा करके मुसाफा कर रहे हैं, लेकिन मेरे खिलाफ आपके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, अदावत है, कीना है, कपट है। आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन आपके दिल के अंदर क्या है रब्बुल आलमीन को सब मालूम है। अल्लाह वालों, इंसान के दिल के अंदर छुपे हुए जज्बात, ख्यालात, एहसासात से जो रब्बुल आलमीन वाकिफ जानता है। मेरे भाइयों दोस्तों, तो आप दुनिया के अंदर गुनाह, गलतियां, पाप ये मत सोच करके करो कि हम बच जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, आप बचने वाले नहीं हो। आप जो कुछ करते हो आपके कंधे वाले फरिश्ते लिखते हैं, आप जहां करते हो वो जमीन रिकॉर्ड कर रही है, आप बच नहीं पाओगे। यही रिकॉर्डिंग, यही लिखा हुआ रजिस्टर कल कयामत के दिन आपके हाथ में, आपके सामने ऐसे पेश कर दिया जाएगा, और जब आप देखोगे तो कहोगे माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हे अल्लाह, छोटे से छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह सब इसके अंदर लिखा है। हमने जो गुनाह लाइट बंद करके किए थे वो भी लिखा है, जो लोगों को दिखा करके किया था वो भी लिखा है, जो लोगों से छुप करके अंजाम दिया था अल्लाह वो भी लिखा है। तो ये हालात हम सब पर आने वाले हैं। अल्लाह वालों, इसकी फिक्र हमें कब होगी? आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन इन्हीं तमाम बातों पर हम तमाम मुसलमानों को कमा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना